Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Just waiting for the other students to join. Good afternoon, ma'am. You were chatting with other teachers. Who were there? I had not joined that time. No, ma'am. आप ही ने force and pressure कर दिया. No, I was not there. Somebody else was speaking over there. So we have started with the fourth chapter, as I told you in the last class also, that fourth chapter we have started, force and pressure. This is the first chapter of physics. Clear? Children, we discussed that about all of you, please stop making noise. चलो हम लोग मेरे कलर कर दिए कलर. Now, force and pressure. Children, we have seen in this chapter that force is push or pull. The simple definition of force, what you are studying in this, force is push or pull, and it can result by the interaction of two or more objects or two or another objects. Then in this chapter we have discussed about effects of force also. This was this I am just for your recapitulation or recalling you, I am just discussing here. Effect of force, change in state of motion. When we will change the state of motion, then applied force, if we are applying force, then it will show some change in the state of motion. This is the effect of force. Then after that, we have also discussed that force can bring change in shape and size of the object also. For that, we have children, we discussed about by giving some examples. And what was the example? This was a general example given to you that when you kick a ball, then if you are hitting it harder, you will see that it moves with a greater speed or a faster speed. Or if you are just pushing it, then it will just roll down on the surface in which you have just applied the force. But if you are applying the force from both the direction, on a surface, if you just place a ball on a table and apply force from both the direction, then what will happen? You will see that the ball does not move. It will come to rest. Like suppose if you are taking the ball and placing it on the table, then if you are applying it from the left side and similarly from the right side, then you will see that it will come to rest. But if you are applying it from an angle, एक angle से अगर apply कर रहे हो, तो that may change the direction also of the motion of that object. I told you to read this summary of that particular example, that if applied force acts on a body in the direction of motion, this we have a common experience also, that if you are applying the force on a body in the direction of motion, जिस direction में कोई object move कर रहा है, if you are applying in the same direction, what will happen? The object will move with a greater speed. वो speed increase कर जाएगा. But if you are applying the force from the opposite direction of motion, here we are talking, अगर मान लो left to right कोई object move कर रहा है और आपका force right to left लग रहा है, तो उसका speed क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा. It will decrease. In both these cases, the object is supposed to be moving in a straight line.
हमेशा इस दोनों सिचुएशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए होना चाहिए. बट इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स to an object in any angle or direction, if you are trying to change this into its direction, then you will have to apply the force in an angle. उसको एक एंगल से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. Then for changing the shape and size, like we have taken the example of dove for making chapatis. For this example also we have taken that the potter give different shape to the earthen pots or to this clay potteries, and they apply different amount of force on it so that it can be molded into different shapes. Here also you can take this example also, that if you are squeezing the tube, you can say shaving tube also, or toothpaste also, then also you are going to apply force, but you are going to change the shape and size of that tube also. Then here we are going to discuss factors associated with the magnitude of force needed. आपको क्या क्या फैक्टर फोर्स के मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना होगा. व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? चिल्ड्रन, दिस इज वेरी कॉमन. आपका ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जो लाइटर मास होगा उसमें अगर आप लेस फोर्स भी अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, ज्यादा स्पीड से मूव करेगा. लेकिन हेवियर ऑब्जेक्ट यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. For that you have to take in your book it is given, this example is given, that the mass of car is lighter as compared to a loaded truck. Then which will require more force, children, to move with a faster speed? The loaded truck will be require more force to move with a greater speed. But if we are applying equal amount of force, the speed of which of the object will be more? The car will be more. Why? Because its mass is less. So जिसका mass less होगा उसमें equal amount of force अगर दो object पर लगा रहे हो, एक आपका heavier object है, दूसरा आपका lighter object है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के टाइम में जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो आपको ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा, और जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा वो स्लोअर स्पीड से मूव करेगा. ठीक है. देन फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. इसके लिए क्या करना होगा, ये इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर गोइंग टू apply force, then let us see. It is now easy to understand that we need to know both the magnitude of force and the direction in which it acts to completely specify it. When we change either the direction of or the magnitude or both of the applied force, its effect changes. अगर आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलना चाह रहे हो तो उसका जो स्पीड पर इफेक्ट होगा वो दोनों बदल जाएगा. ठीक है. अब आपको एक दूसरा टॉपिक आ रहा है बुक में, पेज नंबर 49 में. वो देखो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. हियर टिल हियर चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोग अपना रेज कर सकते हो हैंड. जस्ट रेज योर हैंड. इज इट क्लियर? अभी तक जो पढ़े हो आप क्लियर है ना? ओके ओके. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, balanced and unbalanced force. Here balanced and unbalanced force, it is a very common experience in our day to day life. Children, what happens, अगर आपके रूम में, आपके घर में कोई बड़ा बॉक्स है तो आप क्या करते हो, आपकी मदर खुद ही वो शिफ्ट करना चाहती हैं तो वो शिफ्ट कर लेती हैं. लेकिन अगर वो बहुत ही हैवी है तो उसके लिए क्या करती हैं, शी यूज टू कॉल यू. वो आपको बुलाती हैं और तब आप किसी एक डायरेक्शन में, लाइक लेफ्ट टू राइट अगर उसको मूव करना है, किसी कॉर्नर में ले जाना है, तो शी विल अप्लाई
फोर्स अलोंग विथ योर फोर्स, आपके फोर्स के साथ उस फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो दैट बिकम्स इजियर फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव. लेकिन अगर you and your friend are applying force in opposite direction, will that object move? वो ऑब्जेक्ट इजिली मूव करेगा? नहीं मूव करेगा. क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, या तुम अपना फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड उसके ऑपोजिट में फोर्स लगा रहा है. तो हो सकता है आपका फोर्स ज्यादा हो या उसका फोर्स ज्यादा हो. जिसके तरफ डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा उस बॉक्स का मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा. क्लियर? तो वी कैन से दैट टू चेंज द स्पीड और टू चेंज द डायरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको मूव करना है ऑब्जेक्ट को तो हमको एक ही डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? तो एक आपका सिचुएशन है अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फोर्स लग रहा है और मेरे फ्रेंड का लग रहा है, या आपका फोर्स लग रहा है और आपके फ्रेंड का फोर्स लग रहा है. तो दो फोर्स क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस करेंगे. F1 मैं हुई या आप हुए, ठीक है, और F2 आपका फ्रेंड हुआ या मेरी फ्रेंड हुई. ठीक है, तो दोनों का फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा तो F1 प्लस F2 होगा. क्लियर? अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा. चाहे तो F2 ग्रेटर होगा या F1 ग्रेटर होगा, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है F2 के डायरेक्शन में तो वो क्या हो गया, F2 का फोर्स ज्यादा हो गया ना, तो F2 विल बी ग्रेटर देन F1. जो अब जैसे टग ऑफ वॉर गेम खेलते हैं ना, हम लोग टग ऑफ वॉर का गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो, क्या, जिसको रस्सा कसी का खेल कहा जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ 5-6 पीपल आर इन वन टीम, 5-6 पीपल आर इन द अदर टीम. दो टीम में पार्टिसिपेंट्स है और एक बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है. तो जिस टीम के पास ज्यादा फोर्स होगा वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाएगा. तो दैट मीन्स व्हाट, F2 माइनस F1. वहां पर क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है, इट इज नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, और जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी क्या होगा, मोशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आएगा. अगर बैलेंस्ड होगा, दोनों तरफ से एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो मूवमेंट होगा. मान लो एक बॉक्स ले लो और इस हाथ से भी प्रेस करो और इस हैंड से भी प्रेस करो, क्या वो बॉक्स मूव करेगा, विल इट मूव? It will not move. So to bring an object in motion, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स को अनबैलेंस्ड होना पड़ेगा. मतलब एक डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा, दूसरे डायरेक्शन में कम लगेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा. क्लियर? तो हमारा सिचुएशन क्या आता है, फर्स्ट सिचुएशन है कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन. अगर सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो वो F1 प्लस F2 होता है. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो F2 माइनस F1 होता है. क्लियर? इसका कंक्लूजन आप लोग देखो पेज नंबर 50 में, नीचे बुक में देख लीजिए, उसको हम रीड आउट करते हैं. वी दस कंक्लूड दैट equal and opposite forces do not change the state of rest or motion of the object. ये ट्रू है. अगर इक्वल और ऑपोजिट, मान लो ये हम दोनों हैंड से फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम दोनों हैंड से किसी बॉक्स में फोर्स लगाएंगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो बॉक्स मूव करेगा? नहीं मूव करेगा. तो वो सिचुएशन क्या है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ रेस्ट. वो उस बॉक्स के लिए रेस्ट का सिचुएशन है. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, unequal force may lead to change in state of rest or motion as well as change in size and shape of the object. Unequal amount of force मतलब सपोज कर लो लेफ्ट टू राइट आप फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो नेचुरली दैट बॉक्स विल कम टू
state of motion. So that means from there will be a change in state of motion from rest to the motion. The object will come to motion. Then change in size and shape of the object. Change in size and shape of the object के लिए आप देख लो, एक inflated balloon ले लीजिए. Inflated balloon मतलब फुला हुआ बलून जिसको आप जिसमें आप गैस या हवा भर लो और दोनों पाम से उसको प्रेस करो. A situation will come when it will burst out. वो burst out करेगा क्योंकि दोनों तरफ से आप प्रेशर डाल रहे हो उस पे. तो उसका क्या होगा? साइज डिस्टॉर्टेड होगा. वो साइज और शेप दोनों बदल जाएगा उसका. वो साइज अगर जब वो बर्स्ट आउट किया तो उसका सारा हवा क्या होगा? निकल जाएगा और उसका साइज और शेप दोनों बदल जाएगा. क्लियर? तो चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? इसके लिए आप देख लो, एक एग्जाम्पल आपको इस तरह से भी दिया हुआ है. एक बॉक्स है, एक वुडन बॉक्स है, उसमें आपको दोनों साइड से स्प्रिंग लगा हुआ है. क्लियर? एंड इट इज जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर का ही सिचुएशन है, लेकिन आप उसको फिर से एक बार इस बॉक्स के हिसाब से समझ लो. इफ वी पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ द साइड्स विद द सेम फोर्स, द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी. दिस इज अंडरस्टूड. अगर एक ब्लॉक ले लो और ब्लॉक को दोनों साइड से खींचो, स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, तो बॉक्स मूव करेगा? नहीं मूव करेगा. लेकिन द नेट फोर्स इज जीरो. यहां पर फोर्स आपका जीरो माना जाएगा क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. Similarly, in the game of tug of war, when both the teams pull the rope with equal and opposite forces, the rope remains stationary. The net force again is zero. Now, children, ये आप याद रखो, ये समझ जाइए कि जब अगर किसी फोर्स के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो वहां पर आपका नेट फोर्स जीरो माना जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें आप कोई चेंज ही नहीं ला पाए. आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है. सो दैट विल बी that situation will be considered as stationary and the net force applied will be zero. We call such pair of forces as balanced force. तो हमेशा ये आप सिचुएशन याद करो, याद रखो कि बैलेंस्ड फोर्स में net force applied will be always zero. This is the conclusion. बैलेंस जब भी unbalanced force होगा तो that will be non-zero. यहाँ पर ऊपर में आप देख लीजिए, ये conclusion दिया हुआ है. The resultant of unbalanced force is always non-zero and the resultant of balanced force is zero. ये दो पॉइंट है. The resultant of balanced force is non-zero and to random direction means what? Random direction का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन कभी रैंडम थोड़े हो सकता है. आप जब भी डायरेक्शन अप्लाई करोगे फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, अपोजिट साइड ही होगा. रैंडम डायरेक्शन, व्हाट डज दिस रैंडम डायरेक्शन? आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. रैंडम डायरेक्शन इज नॉट देयर. डायरेक्शन इज ऑलवेज आइदर लेफ्ट राइट. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग, वो अलग सिचुएशन है. ऊपर से अगर आप मीन्स ये सिचुएशन जो आप बोल रहे हो, ये आपको कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होता है. अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो मोशन नहीं होगा उसमें. आपको हमेशा लेफ्ट राइट कोई डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. परपेंडिकुलर में नहीं होगा. आप देख लो पेज 48 में. The force need not always act in the direction of motion. Depending upon the situation, force may act on an angle to the direction of motion. A force acting perpendicular to the direction of motion does not cause any change in speed, but can still cause a change in direction. Speed में उसमें कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन बदल दे सकता है.
अगर मान लो आप किसी एंगल से आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, तो मे बी दैट ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम, अगर वो साउथवर्ड जा रहा होगा और राइट साइड की तरफ थोड़ा मुड़ा होगा, तो मे बी इट मे चेंज द डायरेक्शन, बट उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहे हो. Till here, is it clear? The topic is clear? Raise your hand. अगर टॉपिक क्लियर है तो आप अपना हाथ उठाइए. मास मैग्नीट्यूड का मतलब मास समझो आप लोग. मास अभी के लिए, आगे उसको आप अलग मीनिंग दे सकते हो. अभी आपका मैग्नीट्यूड मास से रिलेटेड है. ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्लियर? कॉन्टैक्ट फोर्सेस when two objects are in direct contact. मैग्नीट्यूड बेटा आई टोल्ड यू, मास से अभी आप लोग फॉर क्लास 8 आप मास से उसको रिलेट करो. अभी मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन के डेफिनेशन के तरफ मत जाओ. यू जस्ट अंडरस्टैंड मास. ठीक है? नाउ हियर टाइप्स ऑफ फोर्स. There are two types of force, contact force and non-contact force. Contact, the meaning is very clear. When two surfaces will be in contact with each other, then that type of force acting on each other is known as contact force. Non-contact force, when there is a distance, the two surfaces are not in direct contact. The types of contact forces: muscular force, then frictional force. These are the two types of contact forces. Like suppose if you are throwing a ball, your muscles are working, hand muscles, arm muscles, they are working, and that is helping in applying that force. Then the bullocks, animals like bullock, horses and camel pulling the carts, reindeer pulling the sledges that are used by the passengers as a vehicle. In these all cases, the animals apply the muscular force. And for lifting, for pushing, for throwing, we are using our muscular force in this for any action to be done. कोई भी action करने के लिए हम अपना muscular force use करते हैं. For pushing, for pulling, for lifting, we use our muscular force. Then frictional force. Children, every time when we are walking or when we are you can say moving, the friction at the same time is there to oppose that motion. Like suppose you are walking, if the friction will not be there, then we will slip down. Like हम जो स्लीपर्स पहनते हैं उसमें ग्रूव्स क्यों होता है? जस्ट टू सपोर्ट दैट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को सपोर्ट, फ्रिक्शन शुड बी देयर. Friction, that what I am talking. Listen to me. Who is this? Krishnakant or someone. Frictional force is the force which is acting side by side with the motion of that object. जैसे सपोज कर लो कोई चीज रोल डाउन कर रहा है, हम वॉक कर रहे हैं, तो हम अगर वॉक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर टू अपोज मोशन. अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? वी विल नॉट बी एबल टू वॉक, वी विल स्लिप डाउन. हम लोग स्लिप कर सकते हैं. आप ध्यान से अगर देखोगे तो टायर्स जो होता है किसी भी व्हीकल का, उसमें ग्रूव्स कटा होता है. Why is it? Why it is not made smooth? स्मूथ क्यों नहीं बनाया जाता है? Just to have friction. Friction should be there. It is a necessary evil. वो एक नेसेसरी इवल है क्योंकि उसके बिना हम वॉक नहीं कर सकते या किसी भी चीज का मोशन नहीं हो सकता है.
You are just talking, we are talking about frictional force here. So you try to understand in that way. Like suppose, when two of the object are in contact with each other, like हम अगर चलते हैं, हम लोग अगर वॉक कर रहे हैं, तो कौन सा सरफेस हमारा अर्थ के कांटेक्ट में होता है? कौन सा बॉडी का पार्ट? नॉट सरफेस, बॉडी पार्ट. आवर फीट इज इन कांटेक्ट विद द अर्थ. तो उसके और अर्थ के बीच में क्या रहता है? हम स्लीपर्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं. यस, they all are having what? Grooves in it. उसमें grooves होता है. और आप देखते होंगे जब कभी भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट, दो सरफेस के बीच में एक थर्ड सरफेस अगर आ जाता है, जैसे सपोज कर लो हम लोग चल रहे हैं, तो हमारा फीट है और अर्थ सरफेस है. अगर बीच में वाटर का लेयर या ऑयल का लेयर आ जाता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? वी स्लिप डाउन. यस, वी स्लिप डाउन. ऐसा होता है ना. तो उसी तरह से फ्रिक्शन को, इट इज अ नेसेसरी इवल दैट शुड बी देयर इन केस ऑफ वॉकिंग और इन केस ऑफ डूइंग एनी वर्क. कोई भी वर्क करने के लिए, लाइक राइटिंग, लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है. Now you will say, ma'am, how it is so? Is it? Yes, it is there. अगर आपका ब्लैक बोर्ड स्मूथ हो जाता है तो हम लोग लिख पाते हैं उस पर? नहीं लिख पाते हैं. अगर आपके पेपर पर ऑयल रहता है, यू आर नॉट एबल टू राइट. पेपर पर अगर एक ड्रॉप ऑयल डाल दो और तब उस पर लिखने की कोशिश करो, यू विल नॉट बी एबल टू राइट, बिकॉज दैट ऑयल सरफेस मेक्स दैट surface smooth enough and the friction is not existing over there. That is why we are not able to write. Clear? Then after that comes non-contact force. Non-contact force में आपका gravitational force है, then magnetic force है. Gravitational force, we know that the force of gravity is being acting in the downward direction. The earth is there and the earth tries to pull all the things towards itself. That is why when we throw anything upward, it comes down. Clear? Then magnetic force. Magnetic force also comes in existence without getting in contact with each other. किसी के कांटेक्ट में आए बिना ही मैग्नेट काम करने लगता है. जैसे अगर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आप कहीं स्प्रिंकल करो और कुछ एक डिस्टेंस पर आप एक मैग्नेट ले आइए और मैग्नेट को वहां पे आप ले जाओ थोड़े एक उसके मैग्नेटिक फील्ड में, जितना पावर का वो मैग्नेट है, और देखोगे कि वो सारा पिंस या जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट जस्ट स्टार्ट्स मोशन ओवर देयर, और वो ट्राई टू जस्ट गेट अटैच्ड टू दैट मैग्नेट. तो इन दैट केस वी कैन से दैट magnetic force is also there, which is a non-contact force. Then electric force. ये चार्जिंग आप लोग पढ़े थे ना क्लास 6 में. क्लास 6 में क्या पढ़ा? जब हम लोग रब करते हैं बाल में कोम को, ड्राई कोम को, प्लास्टिक कोम को, और बिट्स ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो क्या करने लगता है? वो अट्रैक्ट करने लगता है उसको. Why? Because electric charge develops over there. तो here also इबोनाइट रॉड को अगर आप हैंग करो और उसको चार्ज कर लीजिए, चार्ज करने के बाद आप देखोगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. इबोनाइट रॉड को ही लेकर आओगे तो वो रिपल्शन दिखाएगा, लेकिन उसके सामने अगर आप ग्लास रॉड लेकर आओगे, ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड का कॉम्बिनेशन रखोगे, देन द इबोनाइट रॉड विल अट्रैक्ट. That we are you have studied, so I am just telling you once again. 7th में ये चैप्टर था आपको, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. तो उसमें क्या था कि अगर इबोनाइट रॉड को आप बुल से रब कर दीजिए तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है. दैट इट जस्ट इमेजिनरी, ये कोई लिखा हुआ नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है. ब्रिंग दिस चार्ज इबोनाइट रॉड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड. तो ग्लास रॉड में डिफरेंट चार्ज होगा as compared to the ebonite rod. तो ebonite rod में अगर निगेटिव है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव होगा. तो unlike charges, this is a rule that unlike charges attract each other and like charges repel each other.
व्हाट इज योर क्वेश्चन? ट्रीज और फ्रूट्स के बीच में कांटेक्ट होता है तो क्या होगा उससे? फ्रूट तो नीचे आके गिरता है ना, जब वो पक जाता है तो क्या होता है? इट ऑलवेज कम्स डाउन, तो देयर इज नो फोर्स बीइंग डेवलप्ड ओवर देयर, वो तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे आ जाता है. डोंट आस्क एब्सर्ड क्वेश्चंस इन द क्लास. आफ्टरवर्ड यू कैन डिस्कस इन द WhatsApp group. Clear? Ebonite. Ebonite is a type of substance, you understand. Ebonite जैसे ग्लास होता है ना, उसी तरह से ebonite भी एक सब्सटेंस होता है. ठीक है, उसका रॉड बनता है. These all things you have studied in class 7. So just don't just pretend that you don't know anything. That's why you are coming in class 8. You just go in class 4 first and then discuss all the thing. ये छोटी छोटी बातें डिस्कस करने के लिए मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है. आपके पास बहुत सारा सिलेबस है. ये एक ऑब्जेक्ट है, ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड. अब सिल्क क्लॉथ क्या होता है, फ्लैनेल क्या होता है, ये पूछोगे तब तो हो गया, तब तो क्लास ही चलते रह जाएगा. फ्लैनेल, सिल्क क्लॉथ, ये सब आप लोग क्लास 7, 6 में पढ़ चुके हो, जिससे चार्ज किया जाता है. इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पढ़े हो ना. इबोनाइट रॉड एक तरह का सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लास रॉड होता है उसी तरह से इबोनाइट रॉड भी होता है, और इसको चार्ज किया जाता है रब करके. जैसे हम लोग रब करके प्लास्टिक कॉन को चार्ज कर सकते हैं ना, स्केल को चार्ज कर सकते हैं. अगर आप ड्राई हेयर पर रब करोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर जाता है. नो मैटर कि वो कितने कैपेसिटी का है, मे बी इट इज ऑफ लेस कैपेसिटी बट इट गेट्स चार्ज. ये आप ध्यान में रखो. Clear? So till here all of you have understood or not? यहां तक आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Raise your hand. Okay. Then what is your work? आपका वर्क क्या होगा आज के लिए? To learn all the definition terms. Definition term learn कर लीजिएगा, और जितना दूर अभी हम चैप्टर में पढ़ाए हैं उसको एक बार रीड करोगे. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 8. क्लास 8 में अगर बुक को आप रीड नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग इन टच विद द बुक. और काइंडली दूसरे बुक से ये नहीं हुई है आप लोग, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बुक रहता है. ठीक है, आपके बुक से रहेगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें से आप लोग थोड़ा पजल्ड हो जाते हो. क्लियर? दिस इज योर वर्क. आप लोग जितना भी टॉपिक अभी आज हम पढ़ाए, दिस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, रिवाइज इट वंस अगेन. एक बार रिवाइज करो, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर मोर. और इसको एक बार एक्टिविटी को देख लेना आप लोग. पेज 53 आप लोग एक्टिविटीज को सॉल्व करके आओगे. इसमें आपको बताना है कि कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, विच वन इज कांटेक्ट एंड विच वन इज नॉन कांटेक्ट, एंड विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन दैट. ये अलग अलग सिचुएशन आपको दिया हुआ है, इसको आप बुक में ही फिल अप कर लीजिएगा. क्लियर? एंड साइंस के लिए आपको मैम पहले बताई ही होंगी, लेकिन एक कॉपी बनाओगे जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा, और एक रफ कॉपी साथ में रखिएगा. ठीक है, टू नोट डाउन द टर्म्स एंड ऑल, डेफिनेशन टर्म्स एंड ऑल. ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे. एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क? कुछ और पूछना है किसी को? If you want to ask, you can ask. I am allowing you. Here next class we will discuss about pressure. अभी आपका फोर्स का टॉपिक खत्म हो गया है. फोर्स वी हैव डिस्कस, फोर्स का काम खत्म हो गया. अब आप लोग प्रेशर टॉपिक पर आइएगा. चिल्ड्रन, इफ आई विल
if this chapter will not be completed, और अगर आपका वीकली टेस्ट आता है तो जो पोर्शन हम देंगे उसी पोर्शन से आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है. कॉपी यू विल मेक वन कॉपी यू विल मेक, प्रैक्टिकल कॉपी, और एक आप रफ कॉपी रखिए जो सिंपल डिस्कशन के टाइम में क्लास में अगर कुछ नोट करने बोलेंगे तो उसमें नोट करिएगा. नोट्स कॉपी में ओनली यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर केवल नोट्स कॉपी में लिखिएगा, ठीक है. ओके, थैंक यू. एनीथिंग मोर यू वांट टू डिस्कस? कुछ और पूछना है तो पूछ लो. ओके, थैंक यू. थैंक यू. क्या रिपीट करवाना चाह रहे हो?